بلوچستان میں اتوار کو ہونے والے انتخابات کے لیے بھرپور انداز میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی مہم چلائی گئی ہے۔ مرکزی قائدین گلگت میں رہے، جلسے، ریلیاں نکالی گئیں، بھرپور نعرے وعدے کیے گئے، مینڈیٹ بھی سامنے رکھے گئے ہیں۔ اب ہم موجود ہیں گلگت کے بازار میں، یہاں کے لوگوں کے پاس چلتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو اتنی بھرپور سیاسی سرگرمی گلگت کے عوام نے دیکھی ہے، اس کے شاہد بنے ہیں، کیا اثرات ہیں اس کے، کیا فیصلہ کوئی بدلے گا جو وہ سوچ چکے ہیں اس پر قائم ہیں، قائدین کی جانب سے جو وعدے اور باتیں اور جو نعرے لگائے جا رہے ہیں کیا وہ ووٹر کو متاثر کر پائے ہیں، متاثر نہیں کر پائے، کیا وہ اپنی رائے بنا چکے ہیں یا ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ ووٹ کسے دیں، کسی طرح سے وہ شش و پنج کا شکار ہے یا بہت واضح ہیں ووٹ دینے کے لیے، ان قائدین نے انہیں کتنا متاثر کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں گلگت کی عوام کے پاس اور ان کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ کا شکر ہے۔ یہ کہیے کہ بہت شکریہ آپ کا، اور یہاں پر بڑی بھرپور سیاسی مہم چلائی گئی ہے اس بار گلگت میں، بڑے قائدین پہنچے ہوئے ہیں، کیا متاثر ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ متاثر اس لیے ہو رہا ہے کہ 72 سالوں سے یہ علاقہ آئینی حقوق اور قومی دائرے میں نہیں ہے۔ اس دفعہ عمران خان کی حکومت نے بڑی واضح طور پر آئینی عبوری صوبے کا جو اعلان کیا ہے اس سے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اور تمام مالیاتی اداروں میں ہماری نمائندگی گلگت بلتستان کی یقینی ہوگی، کیونکہ 72 سالوں سے ہم مملکت پاکستان، خداداد پاکستان کے لیے قربانیاں دے کر یہاں پہ انتہائی اہم منصوبہ C کے کوریڈور میں بیٹھ کر ہم پاکستان کو مضبوط کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پاکستان سے وہ مراعات، سیاسی حقوق، بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہے۔ اس دفعہ ہمیں امیدیں جاگی ہے کہ قومی اسمبلی کے ذریعے آئین پاکستان میں امینڈمنٹ کر کے گلگت بلتستان کی نمائندگی کو بھی انشور کیا جانا کہ وعدے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں اور پروویژنل آئینی صوبے کا بھی وعدہ ہوا ہے۔ تو اس میں یقیناً یہاں نوجوانوں کے لیے معیاری تعلیمی ادارے، کاروبار کے مواقع، صحت کے حوالے سے جو روزگار کے یہاں پہ وسائل ہے، وہ معدنیات کے وسائل ہے، ان تمام کے لیے ہماری پرامید ہے۔ آج کل لوگ پڑھے لکھے ہیں کہ حکومت پاکستان اور موجودہ حکومت سے ہماری امیدیں ہیں کہ وہ بیٹھ کے یہاں کے لوگوں کے حقوق، وسائل، روزگار، الیکٹریسٹی کا جو مسئلہ ہے اس کو اگر ہنگامی بنیادوں پر حل کرے گی تو یہ نہ صرف گلگت بلتستان اس سے خوشحال ہوگا بلکہ پورا پاکستان یہاں کے اس سے وسائل سے خوشحال ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری امید ہے۔ بڑے جلسے بھی بڑے ہوئے ہیں گلگت کے لوگ کس چیز سے بڑا ہم نے دیکھا لوگ بڑی تعداد میں نکلے ہیں۔ اس جلسوں کا کریڈٹ بھی موجودہ پرائم منسٹر عمران خان کو جاتا ہے، جس نے اس علاقے کی اہمیت کو اجاگر کیا، اس علاقے کو آئینی حقوق دینے کا وعدہ کیا۔ تو وہاں کے جو آئے ہیں یہاں پہ جو سیاسی وہاں پہ جو کھڑ بینچ ہے وہ اس لیے آئے ہیں کہ کل اگر یہ آئینی دائرے میں آتا ہے تو قومی اسمبلی میں گلگت بلتستان کی ووٹوں کی ان کو ضرورت پڑے گی، سینٹ میں ووٹوں کی ضرورت پڑے گی، تو اب وہ یہاں آ کے پروپیگنڈے کر کے اپنے ہمدردیاں جتاتے ہیں۔ پچھلے 50 سالوں سے آپ کی حکومت تھی، یہ علاقہ کیوں محروم رہا، یہ علاقہ کیوں پسماندہ رہا؟ اس وقت آپ کہاں تھے؟ کسی الیکشن میں یہاں آئے، یہاں کے لوگوں کو امپاور کیا، کسی الیکشن کو قومی سطح پر اس طرح اجاگر ہوا، نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں کوریج ملی؟ نہیں ملی۔ ابھی لوگ یہاں پہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، ایکشن کمیٹی ہو، یہاں کے لوکل ایکٹیوسٹ ہو، کانفرنس جماعتیں ہو، انہوں نے یہاں حقوق کی بات کی، سیاسی جدوجہد کی۔ تو آج اس علاقے کی اہمیت جب پتہ چلا ان کو تو وہ یہاں آ کے اپنی وہ نوسروازیاں لے کر آ رہے ہیں۔ یہ چور اور ڈاکو چاہے وہ PTI میں ہے، نون میں ہے، چاہے پیپلز پارٹی میں ہے، ان کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ یہ ملک، معیشت اور نوجوان مضبوط ہونا چاہیے، یہ ہمارا اس دفعہ نعرہ بھی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سے بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اس بار بڑی بھرپور سیاسی مہم انتخابی طور پر چلائی گئی ہے جماعتوں کی جانب سے۔ جی بالکل۔ تو کیا اس کا کوئی اثر پبلک تک جا رہا ہے گلگت میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پچھلے 1-2 مہینے سے یہاں سیاسی سرگرمیاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں کے لوگوں کے اندر سیاسی شعور کافی زیادہ ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کافی بھیڑ ہے تمام روڈوں پہ۔ یہ سیاسی سرگرمیاں ہیں سب۔ بڑے بھرپور جلسے کیے گئے ہیں، تو عوام کس کے جلسے میں ہم نے دیکھا لوگ بہت نکل رہے تھے، تو کوئی میسج جو ہے وہ عوام تک جا رہا ہے جو یہ لیڈر جلسوں میں باتیں کر رہے ہیں؟ جی فی الحال تو الیکشن کے دن سے وہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ سارے جو ہے نا وہ سنہرے خواب دکھا رہے ہیں، سارے بڑے بڑے وعدے یہاں پہ ہو رہے ہیں۔ اب الیکشن کے بعد ہی پتہ ہوگا کہ کس حد تک یہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے جو وعدے ہو رہے ہیں ان پہ۔ تو یہاں پہ تقریباً جتنی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں سب کے جلسے ماشاءاللہ بہت بڑے اور کافی جلسے ہوئے ہیں۔ عبوری صوبے کی جو بات کی جا رہی ہے، لوگ کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کو لگ رہا ہے وہ مطمئن ہے اس نعرے کو لے کر؟ یہاں کی میجارٹی میرے خیال میں صوبے کی حمایت میں ہیں، اس کے حق میں ہیں، کافی لوگ چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صوبے کی حمایت نہیں کرتے ہیں، وہ متنازع جو ہمارا جو ایریا ہے اسی سیٹ اپ کے ساتھ ہی وہ خوش ہیں یہاں پہ۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम जी। हमारे गिलगित बल्तिस्तान में इन दिनों में इलेक्शन का गेम गेमी है। हम तो वोट डाल रहे हैं, लेकिन वफाक में जो है हमारे पीटीआई ने जो 2 साल से जो हमें ख्वाब दिखाया था, वो ख्वाब अब तक कोई भी पूरा नहीं हुआ है। जो हमें बताया गया था लाखों नौकरियां देंगे, लाखों मकाने बनाएंगे, ये सब दावे के दावे रह गए। इसलिए गिलगित बल्तिस्तान में जो मुस्लिम लीग का हुकूमत रहा इससे पहले, इसने जो काम किए बहुत अच्छे काम किए। एजुकेशन में हमारे लिए काम किया, सेहत में गिलगित बल्तिस्तान में सेहत में सबसे टॉप के हॉस्पिटल बनाए, रोड बनाए, वाटर सप्लाइयाँ दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हुकूमत आए। जो बकाया काम है ये सब जो है फिर आगे इसको अपने मंजिल तक पहुँचाए। नून के तो अपने लोग जो पिछली बार वजीर थे बहुत कम इस बार इलेक्शन में नून लीग के टिकट पे हैं। मरियम नवाज यहाँ पहुंची हैं, कोई लोगों तक पैगाम पहुंच रहा है? लोग मुतासिर हो रहे हैं उनकी बिल्कुल पहुँच तकरीरों रहे हैं जी, बिल्कुल पहुँच रहे हैं। मरियम नवाज का गिलगित में 2 जगहों में जलसा था, दोनों जलसे बहुत ही लोगों का गहमी रहा, जलसों में कामयाब रहा। आजम अबूरी सूबे का ऐलान करके गए यहाँ पे, तो अबूरी सूबे के ऐलान किया। इस तरह तो ऐलान बहुत सारे हुए, लेकिन अमल दरामद अभी तक कोई कंफर्म हुआ ही नहीं। अभी जो इन लोग ने भी सुबह का ऐलान किया, ये तो हुकूमत बनने की बात का ऐलान किया हुआ, इन लोग ने कोई पक्का ऐलान नहीं किया हुआ। मैडम आपको क्या लग रहा है ज्यादा वोट किधर जा रहा है? अभी तक तो हमें ये लग रहा है ज्यादा वोट इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही पड़ेगा, उसके बाद पीपल पार्टी को पड़ेगा। मैडम बड़ी भरपूर यहाँ पर इंतखाबी मुहिम चली है, किससे मुतासिर हुए हैं? तासर जो हैं वो तकरीबन 20-25 दिन हुए। बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो साहब पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान और अस्तौर के गाँव देहातों में तक भी गए, उनसे मुतासर हैं लोग, काफ़ी मुतहरक हैं। तो लगता यही है पाकिस्तान पीपल पार्टी इंशाअल्लाह अगर कोई खुफिया हाथ काम न कर गया तो पाकिस्तान पीपल पार्टी बारीक से कामयाबी आ सकती है। तो आप लोग इस वक्त जो सियासी जमातों के नारे हैं सब ने लगाए हैं यहाँ पे, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, कौन सा नारा ऐसा है जो गिलगित के अवाम की भी ख्वाहिश है? जी सबसे पहले तो गिलगित की जो आवाम है वो रोज़गार और दूर अफादा इलाके में, इसमें जो बिलावल साहब ने भी कहा है कि जो इसकी जो अपनी पहचान है, जो इसकी जो हक़ खुरादियत है, अवाम की अपनी राय के मुताबिक जो फ़ैसला होना चाहिए, तो उसमें अवाम को इन्वॉल्व करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा यहाँ का जो प्रॉब्लम है रोज़गार है। अवाम को जो हमारे नौजवान जो लड़के हैं वो डिग्रियाँ लेके बेरोज़गार फिरते हैं, उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई सनत नहीं है, कोई ऐसा कारोबार नहीं है यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी भरपूर इंतखाबी मुहिम रही है, आपके कोई तासुर बदला किसी जमात को लेकर, किसी नारे से मुतासिर हुए, वोट कैसे देने जा रहे हैं, किसको? अक्सरियती गिलगित का जो पढ़ा लिखा जो तबका है वो ये समझता है कि पिछले जो इलेक्शन हो गए थे, पिछले जो असम्बली थी उसने 2 बिल असम्बली से पास किए थे कंटीजेंट मुलाजमीन के। कंटीजेंट मुलाजमीन के 2 बिल पास किया, असम्बली से 2 मरतबा पास हो गया, गज़ट ऑफ पाकिस्तान में शामिल हो गया। उसके बावजूद एक 16 सिकल के करलक के नीचे इस वक्त भी दबा हुआ है। तो अभी ये प्रैक्टिस फजूल है। अक्सरियती अवाम ये समझती है, जो पढ़े लिखे तबका ये समझता है। जो दूसरा जो तबका है जो अपने मुफादात के लिए मुतासिर है, उसके ये झंडे आपको नज़र आ रहे हैं, ये पूरे हम ये समझते हैं कि ये पूरे एक ही प्रेस से छप के आए हैं इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए। आप लोग भी यंग वोटर्स हैं, अभी बड़ी सियासी सरगर्मी हुई है, किस शख्सियत ने या कौन से नारे ने बड़ा मुतासिर किया आपको? नारे ने नहीं, बस हम आज़ाद उम्मीदवार को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि पार्टियां इस तरह होती है कि यहाँ पे अक्सर जब इलेक्शन होते हैं, आप इस टाइम कोई ले ले तो देखे, तो इससे पहले हमने किसी को देखा नहीं है। जब भी इलेक्शन के टाइम आते हैं सारे कारकुन पार्टी के जो भी जिम्मेदारान हैं जो आते हैं वो पार्टी के वोट लेने के लिए आते हैं, उससे पहले कोई बंदा हमने देखा नहीं है। इससे बेहतर है हम आज़ाद को दे दें। मगर आज़ाद ने भी तो कल को किसी जमात के साथ खड़े होना है। नहीं, हम अपने मौक़िफ़ रख लेंगे ना उसको, उनके सामने जिस हुकूमत में भी जाना हो, जो भी हमारे जो डिमांड्स होंगे उनके साथ जब वो एग्री कर लेंगे तब उनके साथ मिलेंगे हम। डिमांड्स क्या हैं यहाँ के लोगों के? डिमांड्स ये है कि हमें हुकूक अभी तक मिले नहीं है, हम चाहते कि हमें हुकूक मिले। वज़ीर आज़म ने आके यहाँ पे ऐलान कर दिया सूबा बन गया जी, इस तरह कोई सूबा नहीं बनता। ये अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा रिकॉर्ड हुआ है, या इस तरह का अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आके सारे ऐलानात कर रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे वो लोग? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, देखिए आप यूथ हैं, यूथ को बड़ा हर जगह पे बताया जाता है, बात की जाती है। बिलावल भुट्टो यहाँ पहुँचे हैं, मरियम नवाज़ यहाँ पर पहुँची है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर यहाँ पर आ रहे हैं। किसी शख्सियत से मुतासिर नहीं हुए आप लोग, किसी के नारे से मुतासिर नहीं? नहीं। वो सब बकवास है, सब सारे वोट लेने के लिए आ रहे हैं। वो पैसे गंडापुर ने क्या कहा इजलास में, जितने वोट दोगे उतने नोट लोगे, ये पूरा करप्शन कर रहे हैं लोग पूरा। आज़ाद अच्छे, आज़ाद जो जिस पार्टी में जाए आज़ाद वाले जिंदाबाद आज़ाद।
बड़ी सियासी सरगर्मी हो रही है, वोट डलने जा रहा है। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, किसी के साथ। हमारे लिए ये है ना, जो काम करेगा उसके साथ है, जो काम नहीं वो तो करेगा आप पहले चूज करेंगे ना, किसी को आप वोट डालेंगे तो फिर ही कोई काम वो हो। तो अभी बुढ़े हो गए हैं बेटा हम लोग, वोट डाल डाल कर हमारे अंगूठे भी खराब हुए हैं। नहीं, बड़ी बड़ी है ना? शख्सियात आई हुई है गिलगित तो में, इस बार आज बड़ी तक मुहिम हमारे- चली है। बेटा बाचेर, अगर आप मेरे साथ आओगे तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। कोई भी नुमाइंदा आए आज दिन तक किसी ने कुछ नहीं किए, कोई नहीं यहाँ पहुँचा नहीं किसी किए। जमात का। अभी पिछली दफा रोड फांसी है, उधर नॉर्मल का रोड उस वक्त वो डीसी साहब आकर देख कर उसे रोड बढ़वाया, बाकी किसी नुमाइंदे ने कुछ नहीं किए। ये सब थोड़ा बहुत ये हल्कतीन में काम हुए ये नून लीग के दौर में, इससे पहले तो हमारे बूढ़े हो गए, अभी तक किसी ने नहीं कोई सर, काम आपने नहीं। इतनी बार कहा मैंने इतने वोट डाले, बट मुझे ये कहिए कि इस बार जिस तरह की इंतखाबी मुहिम चली है, बिलावल तो- भुट्टो, मरियम नवाज यहाँ बैठे हैं, किसी के नारे ने, किसी की शख्सियत ने, आप लोगों के साथ अपनी मोहब्बत के इजहार ने आपको मुतासिर किया मैं है? एक बात बताऊं मैडम, सबसे पहले बात तो ये है शख्सियत हमारी अपनी भी शख्सियत। बिल्कुल हम दुरुस्त भी है। बाहर जाते हैं, किसी के साथ मिलते हैं, ये करते हैं, लेकिन जहाँ तक वोट का नुमाइंदे का ताल्लुक है तो जो नुमाइंदा काम करता है उसको हम बार बार लाते हैं, जो काम नहीं करता है किसी भी पार्टी से हो ये हम जल्द से उसको कोई असर लाते नहीं हैं। रखते, आप ये कह रहे हैं नहीं, जल्द से नहीं, हो रहे हैं, कोई असर नहीं नहीं, होता। ऐसे कोई नहीं है, कोई नहीं है, नहीं तो लोग सोच के बैठे हैं कि उन्हें वोट नहीं, डालना। नहीं। नहीं, हमारे साथ जो काम करेगा उसको हम वोट देकर लाएंगे, जो नहीं करता है उसको हम नहीं लाते हैं, तो किसको वोट दे रहे किसी हैं? भी पार्टी से हो। हमारे पार्टी के साथ वास्ता नहीं है, हमारा काम के साथ वास्ता है। सर इस बार क्या नजर आ रहा है, ये सियासी सरगर्मी जो हुई है? मेरे जहाँ तक तजज़िये में 1994 से पॉलिटिक्स में जी भी के जब ये रेगुलेटरी काउंसिल था, अभी तो माशाल्लाह ये जी भी काउंसिल बन गई है। तो हल्का नंबर 1 से मेरे हिसाब के मुताबिक कागज में ये पॉलिटिकल फिगर होने के नाते ये आपसे कहूँगा कि हल्का नंबर 1 से पुरसिया अमजद साहब है PPP के, वो जीत जाएंगे, और हल्का नंबर 2 से सलमान साहब जीत जाएंगे। हल्का नंबर 3 से कैप्टन शफी जीत जाएंगे, मुस्लिम लीग का भी कैंडिडेट है। हल्का नंबर 4 से PP सीट ले जाएगी, और 5 से इस्लामी तहरीक पीटाएगी, डॉक्टर उस्मान साहब ले जाएंगे। हल्का 6 उनसे से मीर गजम्फर साहब हैं, वो जीत जाएंगे। ये जी भी सब जिला गिलगित मैंने बताया 6 सीटें हमारी गिलगित ठीक है। की। और गिजर की 3 सीटें हमारे पास, उनमें राजेंद्र साहब है जो PTI के हैं, वो पहले भी अकलौता ही जीते हैं, इस हुकूमत भी इंशाल्लाह काम भी किए हैं तो जीत भी जाएंगे। तो अयूब शाह भाई हैं पीपल्स पार्टी के, उसने भी काम किए हैं, लेकिन कुछ उसकी खराबियाँ भी थी बीच में, वो मनसर तालीम रहा, उसके कुछ करप्शन की केसेस की वजह से लोग थोड़े बदजन भी हुए हैं, उसकी वो कन्फर्म नहीं है। बाकी भाई रही बात PTI वाला जो अमीन गंडापुर से फिर रहा है, ये एक समझो कि सेलेक्टेड है, इसके इधर कोई विजन मुझे नहीं है। बताइए कि जो जल्द से इतने भरपूर हुए हैं, जो नारे इतने भरपूर लगे जी। हैं, वादे किए गए और पर्सनल कमेंट्स भी किए गए जलसों में, जो आम जहाँ पे लोग हैं जी वो मुतासिर हुए हैं, या ये इररेलेवेंट है जो जितनी एक्टिविटी ग्राउंड पे की गई? नहीं, ये रूटीन वर्क हर इलेक्शन में इस तरह ही होता है जो अभी हो रहा है, ये रूटीन वर्क लोगों की राय और सोच बनी हुई है। बिल्कुल। ये इस वजह से कि अभी अमीन गंडापुर 2.5 साल हमारा मिनिस्टर रहा है, अभी इलेक्शन के दिन वो इधर आया। पहले नहीं कभी आया? पहले बर्जिश तैयारी जब था मुस्लिम लीग वो आता रहा है, कमर जुमान कह रहा हमारा मैं गंडापुर गवर्नर साहब की बात करी कि पिछले अरसे में नहीं है। नहीं है, कभी नहीं है इधर। सर बड़ी भरपूर सियासी मुहिम चलाई गई है सियासी जमातों की तरफ से, कोई असर अवाम पर आया है? उन्होंने कुछ इसमें से लिया है, कुछ पसंद किया है? आज ये तो सबसे पहले हम उन तमाम पार्टियों का शुक्रिया अदा करते हैं, वो पसमानदा ऐसे दूर दराज इलाकों में आए हैं, बड़े बड़े सियासी शख्सियात आए हैं, इनका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि ये पसमानदा इलाका है, बैकवर्ड एरिया है। अगर यहाँ ऐसे बड़े लोग इंटरेस्ट लेंगे तो लोगों को वोट की अहमियत का एहसास होगा। अब यहाँ लोगों को एहसास हो रहा है, इससे पहले इन इलाकों के अंदर जो लोग वोट दे रहे थे वो किसी और सोच से दे रहे थे, अभी लोग इसलिए सोच दे रहे हैं कि यहाँ पे हमारे अंदर लोगों में शऊर आ रहा है, तो इसलिए हमें बहुत खुशी है। यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं, अच्छी पार्टियों के बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं जो इंटरनेशनल लेवल के सियासतदान हैं। इससे यहाँ के इलाके में तरक्की भी आ जाएगी, और यहाँ की जो मसाइल हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे अभी आप मीडिया में आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, पूरी दुनिया आ रही है, देख रही है इस वक्त, तो हमें बहुत खुशी ये हो जो रही है। जलसे हुए हैं, हमेशा कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट मरकज़ की होती है उस असर रहता है और लोग उस तरफ जाते हैं, वोट उधर को जाता है। ये जलसे करने वाली जो अपोजिशन है और PDM के भी एक प्लेटफॉर्म पर है, तो ये कहीं ट्रांसलेट हो गए इनके जलसे वोटों में? ये तो मरियम भी खुद ये कह रही थी, तो ये असल में अब उनको सोचना चाहिए, उन बड़े पार्टियों को सोचना चाहिए कि ऐसा यहाँ क्यों होता है। ये सोच लोगों के अंदर कहाँ से आ गई कि वफाक में जिसकी पार्टी होती है यहाँ लोग उसी को वोट देते हैं, ये नहीं देखते हैं
कि भाई जो पार्टी को हम वोट दे रहे हैं वो कल इस इलाके के लिए क्या डेवलपमेंट ला रहे हैं, यहाँ के नौजवानों के लिए, तालिब इल्मों के लिए क्या सोच ला रही है और ख़वातीन के लिए क्या सोच ला रही है। अब इतना हम डेवलप होने के लिए थोड़ा वक्त की ज़रूरत है। जैसे पाकिस्तान डेवलप हो जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इसी तरह इन लोगों को भी ज़हनी शऊर आने तक थोड़ा सा वक्त चाहिए। अगर इसी तरह रफ्ते रहे मरकज़ के साथ पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों का आना जाना रहा तो तमाम लोग उनके साथ इंटरेस्ट है। अब इनके अंदर शऊर आ रहा है, बात करने का अंदाज़ आ रहा है, पहले तो हम में इतना भी नहीं था। तो हम तो तमाम वफाकी पार्टियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, मीडिया का भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप किसे वोट देने जा रहे हैं? बड़ी बड़ी तकरीरें यहाँ पर हुई हैं, कोई मुतासिर हुए? बिस्मिल्लाह। मैडम, मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने दूर दराज इलाके में आए हमें इज़्ज़त बख्शी। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू। तो यहाँ पे ये है कि ये होता है जो हुकूमत वफाक में होती है वो उसी को वोट करता है, क्योंकि काम उनसे निकलता है ना। पहले मुस्लिम लीग की थी तो उनकी गवर्नमेंट थी, पीपल पार्टी की थी, वो लोग चालाक हैं यहाँ के। आपका कोई नजरिया नहीं है? नहीं, मेरा नजरिया है। आई एम थिंकिंग, मैं कहता हूँ कि ये माने जो भी है जो अच्छे काम करे उसको दे दें। मैं तो खैर आई गिव एन PP, you understand? You know Pakistan People's Party. I liked in them. He is very poor party, गरीबों का पार्टी है, is like, तो उनको वे चाहते हैं अल्लाह माने उनको तरक्की दे दे। लेकिन ये कि इमरान खान भी आपने विजन उसका अच्छा है, वो बुरा नहीं है। आप किसी के जलसे में गए हैं अभी तक? मैं जलसे में बहुत से जलसे में गया हूँ, मैं हर जलसे में जाता हूँ। ये कोई 5-6 दिन हो गए, 10 दिन हर पार्टी में मैं अटेंड करता हूँ, जाता हूँ। किसकी तकरीर सबसे अच्छी लगी? मुझे तकरीर अच्छी लगी जनाब मरियम नवाज का। आई लाइक, बस अपने मर्जी है ना, उसकी तकरीर मुझे अच्छी लगी। बिलावल भी अच्छा कर रहा है, उसको बुरा नहीं कहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की भी अच्छा करता है, उसको भी नहीं। खैर गिलफ ने तो इमरान खान को पहले नंबर पे दे दिया, आपको पता है ना। दूसरा PP है। इमरान खान की तकरीर भी अच्छी है, लेकिन अभी आपने वोट अपनी मर्जी की बात होती है ना, आप जिसको दे रहे हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। इमरान खान भी एक निडर लीडर है, लेकिन उसके नीचे भी चोर हैं सब। हमें सबसे बड़ा इशू महंगाई का है यहाँ पे। महंगाई का क्या देखिए, चीनी महंगी हो गई है, मुर्गी महंगी हो गई है। आप दावा दे रहे हैं इमरान खान इसको सस्ता करे। सही। अब पीपल पार्टी शख्सियत मरियम की पसंद आई, वोट आप बिलावल को देंगे? और महंगाई आपका इशू है? महंगाई का तो इशू है बिल्कुल। देखो ना, चीनी के 55 में था, 110 पे चला गया। आप मुर्गी देखें यहाँ पे कितनी महंगाई। इसको बिलावल कह रहे हम नीचे करेंगे, तो आज PTI भी इसको नीचे कर दे। सर, बड़ी भरपूर यहाँ पर सरगर्मी हुई है सियासी तौर पर। जो यहाँ पे कायदीन पहुँचे उनकी तकरीरों ने कोई असर डाला, मुतासर किया है लोगों को? देखिए, हमारा गिलगित बल्तिस्तान का नेचर ही डिफरेंट है। यहाँ पे आप मुख्तलिफ डिफरेंट पार्टीज़ के यहाँ पे लीडर्स आएगा, लाइक बिलावल आ गया, मरियम साहब आ गई और गंडापुर साहब आ गई। यहाँ के लोगों का ये कि नवंबर का महीना जो होता है, नवंबर से मार्च तक का जो महीना होता है, वो बिल्कुल लोग फारिग होते हैं। वो पार्टी बेस पे किसी जलसे में नहीं जाते हैं, उसमें हर पार्टी के लोग होते हैं। इससे हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो लीड कर रही है। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है, वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है, अबूरी हुकूमत का ऐलान हो चुका है, लेकिन किस नोयत का जो है अबूरी सेटअप दिया जाएगा इसके बारे में तफसील से नहीं बताया गया है। आइन के आपके आर्टिकल 1, आर्टिकल 5 और 257 और 258 में अमेंडमेंट की ज़रूरत है। किस तरह की जाएगी? क्या दूसरी जो पार्टियां हैं आपके पाकिस्तान वफाक के अंदर वो उसका साथ देंगी? क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है आइन में तब्दीली लाने के लिए। ये सवालात हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के जहनों में जन्म ले रहे हैं कि अबूरी जो सेटअप दिया जाएगा वो किस नोयत का होगा, और वफाक में सेनेट के अंदर हमें किस तरह की नुमाइंदगी दी जाएगी। जो पार्टी यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान को देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के लोग मुहिब वतन हैं। यहाँ के लोगों ने वाना से लेकर करगिल से लेकर हर जगह पे जहाँ पे उन्होंने अपनी जानें निछावर की हैं कि पाकिस्तान के लिए। बट पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ पाकिस्तान, जो आपकी नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या दीगर जो भी हो, उन्होंने कहा कि ये गिलगित बल्तिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता है, आपके आइनी सूबा नहीं बन सकता है। लेकिन अब आके वो जो है इस पेज पे आ गए हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी हुकूमत आए। देखिए, कोई तो तब होगा ना, आपका वोट आप क्या मुंतखब करने जा रहे हैं। मेरी बात वही है कि यहाँ पे सबने नारे लगाए, तकरीरें हुई हैं, वोटर क्या सोच रहा है, उसको कहीं कोई मुतासिर हुआ है? देखिए, पिछले जब से यहाँ से FCR का खात्मा हो गया है, तब के बाद से जो पॉलिटिकल पार्टी 70 से यहाँ पे काम कर रही हैं, वो यही नारे लगा रही हैं। हमारा इशू जो है सब्सिडी नहीं है। हमारा मैं कहता हूँ कि हमें सब्सिडी से कोई सरोकार नहीं है। हमें आइनी हुकूक दिए जाए, हमें NFC अवार्ड में जो है हिस्सा दिया जाए, हमें दूसरे जितने भी प्रिविलेजेस हैं हमें वो दिए जाएँ। तब जो है हम किसी पार्टी का सोचेंगे। जो पार्टी ये काम करेगी, भले वो पीपल पार्टी हो, PTI हो, नून लीग हो, जो फैसिलिटेट करेगी और आइनी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाएगी, जी भी क्या आवाम उसके साथ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
گلگت بلتستان کے انتخاب کی کوریج کے لیے ہم گلگت میں اس وقت موجود ہیں. جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو اراکین اس وقت انتخاب کے لیے میدان میں ہیں عوام کیا رائے رکھتی ہے, ساتھ ہی ساتھ کہ الیکشن لڑنے والوں کی ترجیحات کیا ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر ورکس اینڈ پلاننگ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت نکالنے کے لیے. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ اس بار آزاد انتخاب لڑ رہے ہیں جبکہ آپ سابق وزیر رہے, ایسا کیوں؟ دیکھیں جی, پچھلی دور حکومت میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا اور پھر میں بھاری اکثریت سے جیت گیا تھا. لیکن 5 سال میں نے یہاں پہ بڑے محنت کی, کام کیا, اور یہاں پہ بڑے مسئلے تھے. یہ خاص طور پر یہ جو ایریا ہے جہاں 18,000 ووٹ ہیں, اور پانی کا مسئلہ تھا, صاف پینے کا پانی کا, اور سڑکوں کا مسئلہ تھا, گرلز کالجز کا, وہ سارے میں نے حل کیے. اور تقریباً 7 بلین کے میں نے یہاں پہ پروجیکٹس کام کروائے. اب آپ نے پوچھا کہ میں آزاد کیوں لڑ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے بڑی اہم وزارت تھی. جی بالکل وہ وزارت تھی, لیکن یہ ہے کہ ابھی آگے میں نے الیکشن جیت کر لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. تو میں نے جب دیکھا کہ وفاق میں حکومت PMLN کی نہیں ہے, اور یہاں پہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ وفاق میں جس کی گورنمنٹ ہو اسی کی ہی گورنمنٹ بن جاتی ہے, کیونکہ لوگوں کا رجحان اس کی طرف زیادہ ہوتا ہے. تو اگر میں فرض کرو اس وقت PMLN کے ٹکٹ سے الیکشن لڑتا, ہو سکتا میں جیت بھی جاتا, لیکن میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا تھا کہ میں جیت کے کیا کروں گا, کیونکہ اگر آپ اپوزیشن میں ہوں. پچھلی دفعہ ہمارے جب گورنمنٹ تھی, اپوزیشن لیڈر, آج کل میرا اپوننٹ کینڈیڈیٹ ہے, وہ اپوزیشن لیڈر تھا, ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ آ کے اپوزیشن لیڈر بن گیا تھا. اس نے ایک کلوٹ تک اس پورے حلقے میں نہیں بنایا, اس کو 0 کر کے چھوڑا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کا کام نکالنے کے لیے آپ کو گورنمنٹ میں ہونا ضروری ہوتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ میرے جو حلقے کے عوام تھے, ان کا ڈیمانڈ بھی یہ تھا کہ میں آزاد الیکشن لڑوں, اور اس کے بعد پھر جو بھی گورنمنٹ بن جائے گی میں ان کے ساتھ, کیونکہ اصل بات ہوتی ہے الیکشن جیتنے کی. جب آپ الیکشن جیتتے ہیں تو کوئی بھی گورنمنٹ آپ کو, کوئی بھی پارٹی جو ہے نا وہ آپ کو لے لے. اس بار گراؤنڈ پر بڑا سیاسی ایک جوش و خروش اور ہلچل ہے, اور بڑے بڑے لیڈرز آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا مختلف ہے اس بار کے انتخاب میں, کیوں اس طرح؟ اس بار اس لیے مختلف ہے کہ پچھلی دفعہ جب ہم الیکشن لڑے تھے اس وقت حالات مختلف تھے. اب ہوا یہ کہ 5 سال بعد آپ کو معلوم ہے سی پیک آیا, اور سی پیک کی وجہ سے بھی اس علاقے کی اسٹریٹجک اہمیت بڑھ گئی. پھر یہاں دیامر بادشاہ ڈیم بن رہا ہے. پھر انڈیا نے کشمیر کے اندر جو وہاں پہ حالات کیے, ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا, 370 اور 35A ریووک کیا, اور وہاں پر ظلم کیا, تو ظاہر ہے پھر انڈیا نے یہاں پر بھی دخل اندازی شروع کی. آپ کو معلوم ہے مودی نے گلگت بلتستان کا نام لے کے 15 اگست کو اس نے شاید 2 سال پہلے کہا کہ یہ یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے, ہمارا علاقہ ہے, فلانا, اس طرح کی باتیں کی. اس وجہ سے ظاہر ہے پھر پاکستان کو بھی یہاں پہ انٹرسٹ ان کا بڑھ گیا. اور پھر پچھلے 2 مہینے پہلے شاید آپ نے سنا ہوگا کہ ساری پارلیمانی پارٹیوں کو جمع کر کے ایک ڈیسیجن ہوا کہ اس کو پروویژنل پروونس بنائیں گے ٹل دا ڈیسیجن آف کشمیر ایشو. اس وجہ سے پھر جو پارٹیاں ہیں پاکستان, ظاہر ہے یہ پروونس تو بنے گا, آج نہیں تو کل, نہیں تو 2 سال بعد بن جائے گا. جب پروونس بنے گا تو ظاہر ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہوگی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز آپریٹ, ظاہر ہے ان کی نمائندگی قومی اسمبلی میں ہوگی, سینٹ میں ہوگی. تو پھر ان نمائندوں کی ہم یہی کہتے تھے پہلے بھی, دیکھیں ہمیں چاہے 2 یا 3 یا 4 جتنی بھی سیٹیں مل جاتی ہے اسمبلی میں, اس سے ہمارے علاقے کی قدر و قیمت ان پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے بڑھ جائے گی. تو آپ جماعتوں کو بدلنا مطلب ہے, ابھی آپ نون لیگ سے ٹکٹ ہے کسی کے پاس, پھر PTI سے, اس کا فائدہ عوام کو کیا ہوتا ہے, یا پھر وہ جو ٹکٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ کوئی بھی آپ ہیں, جیسے آپ نون لیگ سے لڑے, آپ پیپلز پارٹی سے لڑے, فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی جب پارٹی ہوتی ہے, آپ گورنمنٹ کی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں, بے شک آپ کا کوئی عہدہ ہو یا نہیں ہو, اس میں آپ کو فنڈز مل جاتے ہیں. جیسے پچھلی دفعہ مجھے یہاں پہ فنڈز ملے, میں نے ڈیولپمنٹ کا کام کروایا. اب اگر میں گورنمنٹ کی پارٹی میں نہیں ہوں تو میرا ایک بھی کام نہیں ہوگا, یہاں پہ 1 روپیہ بھی مجھے نہیں ملے گا, اپوزیشن کو نہیں ملتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے عوام کا نقصان ہوگا. 5 سال عوام کو انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ نئی گورنمنٹ آ جائے گی تو یہاں
क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम के बगैर, मेंबरों के बगैर डेवलपमेंट का काम होता ही नहीं। ये सिस्टम ऐसा है यहाँ पे कि जितने भी ये काम होते हैं, ये रोड्स बनवाए हैं, वाटर सप्लाई का काम है, ये इसका बिजली पावर का है, और स्कूल कॉलेजेस हेल्थ, ये सारे मेंबरों के थ्रू। आप ये कह रहे हैं कि जितनी भी शफाफियत से गुज़िश्ता हुकूमत ने यहाँ की काम किया हो वो मैटर नहीं करता है, कि वफाक की जो वहाँ की हुकूमत होगी वहाँ जो होगा ये ज़्यादा। देखिए, मैं ये चौथा इलेक्शन लड़ रहा हूँ अभी तक, ठीक है ना, और इलेक्शन में होता ये है कि आप जितना भी काम करें, ठीक है, अभी मैंने 7 बिलियन का काम किया, लेकिन ये है कि लोग काम को नहीं देखते हैं। वो पीछे जब इलेक्शन कैंपेन होती है ना, उसमें लोग पीछे नहीं देखते हैं, आगे देखते हैं, पीछे को भूल जाते हैं, आगे हमारे लिए क्या फ़ायदा है, ठीक है ना, उसको देखते हैं। तो जाहिर है आगे उनके लिए जो गवर्नमेंट वफाक में होगी उसके अंदर कुछ उम्मीद नज़र आती है, बाकी उनके लिए उनके। तो मैं आखिर में ये कह दूं कि डॉक्टर इकबाल अगर इलेक्शन जीत जाते हैं, वोटर साथ खड़ा रहता है, तो फिर आप पीटीआई कोई भी गवर्नमेंट बन रही होगी, आप बीइंग इंडिपेंडेंट, इसमें कोई शक नहीं है। वो तो मैंने अनाउंस किया अपने कैंपेन के दौरान, हर जलसे में मैंने तकरीरों में, इंटरव्यू में यही कहा है कि आज़ाद इसलिए लड़ रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट बनाएगा, जो भी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, चाहे क्या है कौन बनाने जा रहा है? पीटीआई, मुझे तो अव्वल तो पीटीआई के चांसेस ज़्यादा हैं, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो हो सकता है ये मखलूत टाइप की गवर्नमेंट बन जाएगी, क्योंकि आज़ाद भी ज़्यादा हैं। तो दूसरी सूरत में वो भी हो सकता है, पीपल्स पार्टी, आज़ाद, इस तरह की कोई कम्बिनेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन के बारे में आदमी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये रातों रात चेंज हो जाती है लोगों की जो है ना। इस बार जीबी के इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, आज़ाद शफाफ इंतखाबात। हाँ, अभी तक तो मुझे लगता है कि अच्छे आज़ाद तो है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसकी एक वजह है कि चाहे पाकिस्तान में कोई इंटरफेरेंस हो या नहीं हो, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए है कि एक तो यहाँ छोटा इलाका है, कोई भी मुदाखलत करे वो फ़ौरन पता चलता है। दूसरी बात ये है कि इंडिया की वजह से पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी सेंसिटिव है। उन्होंने हमें क्लियरली कहा है कि हम यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, ना किसी एजेंसी ने, ना किसी इदारे ने यहाँ पे इंटरफेयर करना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, ये हमें उन्होंने पहले से ही क्लियर कर दिया। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और गवर्नमेंट बन जाएगी, और उसके बाद हम। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि आज़ाद इंतखाब क्यों लड़ते हैं, ताकि अपने इलाके के आवाम के लिए डेवलपमेंट के काम या वो जो ख्वाहिश रखते हैं उसको मुकम्मल कर सकें, और वो उसी सूरत मुतमईन है अगर आप उस हिस्से में चले जाएं जिसे हुकूमत बनाना है या जहाँ पर हुकूमत साजी होनी है। एक ब्रेक लेते हैं, कुछ और गुफ्तगू ब्रेक के बाद। हम भी इस वक्त गिलगित से काफ़ी बाहर रहीमाबाद के इलाके में मौजूद हैं। ये कहना ज़रूरी है कि ख़वातीन इस इंतखाब में भरपूर अंदाज में शिरकत करती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर जनरल सीट पर भी ख़वातीन खड़ी हैं, यहाँ पर ख़वातीन कारकुन भी नज़र आ रही हैं जलसों और रैलियों में। यहाँ पर ख़वातीन जो घरों पर बैठी हैं वो भी इंतखाब को लेकर बहुत पुरजोश हैं। देखना यह है कि इतवार के रोज़ जब वोट डालने लोग निकलेंगे तो वो किस जमात का इंतखाब करते हैं। एक तो रिवायत रही है कि जो सेंटर में हुकूमत होती है पलड़ा वहीं भारी रहता है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने भरपूर जोर लगाया है। आने वाले दिन इसका फैसला करेंगे कि पलड़ा कहाँ झुकता है। मैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सुहेल अब्बास शाह साहब के साथ मौजूद हूँ। सुहेल साहब, ये कहिएगा कि क्या एजेंडा लेकर आप लोगों के पास आ रहे हैं और क्या वादे किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ आई। उसके बाद यहाँ के लोगों का एक बेसिक मुतालिबा था जो 72 साल से हमें नहीं दिए जा रहे थे, हमारे बुनियादी हुकूक। उसके हवाले से 1 नवंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यहाँ ऐलान किया अबूरी आइनी सूबे का, जिसके बाद यहाँ के अवाम में एक खुशी की लहर दौड़ उठी है, क्योंकि 72 साल से हमें कोई दूसरी पार्टियां आ रही थी लेकिन हमें नेगलेक्ट किया जा रहा था। तो ये पहली बार हमें अबूरी आइनी सूबा दिया जा रहा है, तो जिसके लिए हम उसी मंशूर को लेके आगे फिरेंगे, चलेंगे। सेनेटर नीलोफर बख्तियार साहिबा मौजूद हैं। सेनेटर साहिबा, वफाकी वज़रा आकर अगर ये नारे लगाएं कि जितना हमें वोट दोगे हम उस हिसाब से और उसी तरह से आपको फंड मिलेगा, तो क्या वोटर को ये oblige करना चाह रहे हैं, थ्रेट करना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, वो एक जोश और जज्बे में जलसे का एक बयान होता है, लेकिन वो अमीर कश्मीर के वज़ीर हैं और उन्होंने अब तक बहुत कोशिश की है यहाँ के हालात बेहतर करने में, लेकिन जब तक यहाँ हमारी हुकूमत नहीं आएगी उनके हाथ बन जाते हैं। वो फ़ंड वहाँ से यहाँ भेजते हैं, यहाँ पे ये खा पी जाते हैं, तो वज़ीर बन के तंग आ चुके हैं वो।
इस गुस्से में और गम में वो ये कह रहे थे कि प्लीज़ पीटीआई की हुकूमत को आगे आने दो ताकि ये चोर ये लुटेरे यहाँ से जाएं, हम इसका निज़ाम बदलें। देखिए इतना खूबसूरत है, आप जहाँ मैं और आप खड़े हैं, इर्द गिर्द में पहाड़ देख रही थी और मैं चूँकि सियाहत की वज़ीर रह चुकी हूँ तो मैं समझती हूँ यहाँ एक बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। तो इस दफ़ा हमने हुकूमत बनानी है, हमने यहाँ की सड़कों का निज़ाम बेहतर करना है, अस्पताल बेहतर करने हैं। ख़वातीन हमारी ज़चकी में दम तोड़ देती हैं, बच्चे उनके मर जाते हैं, सड़क नहीं होती, अस्पताल में कोई गायनी वार्ड्स नहीं है, स्कूल नहीं हमारी बच्चियाँ जा सकती, पानी का नल खोलते, क्योंकि मैं तो पूरा जीबी फिर रही हूँ उस वक़्त, मिट्टी आती है बीच में, पानी पिया नहीं जाता। कौन लोग हैं जो इनको वोट देंगे? जो लोग इनको वोट देंगे उनको खुद सोचना चाहिए। अच्छा, बड़ा हम सवाल है यहाँ पर अब आपसे, अभी जो हुकूमत थी नून लीग की गुजरी, उसके जो इस पर खड़े हुए लोग हैं उनमें बहुत कम वो लोग हैं जो कि पिछली असेंबली के वज़रा रह चुके हैं, कुछ आज़ाद लड़ रहे हैं, कुछ आपकी जमात में। तो सवाल यह है कि चेहरे तो वही होंगे, जिन लोगों को आप अभी खड़े होकर इल्ज़ाम दे रहे हैं वो चेहरे वही होंगे, तो क्या तब्दीली आ जाएगी? क्योंकि मेरा लीडर साफ और शफाफ इंसान है। मैं इमरान खान में बिलीव करती हूँ। मैं समझती हूँ, मैंने ये पार्टी सिर्फ इसलिए ज्वाइन की है कि जब मैं उसको डिफेंड करती हूँ टीवी में तो मेरा सर और ऊपर हो जाता है, मैं झुकती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लीडर ने कोई चोरी किया हुआ पैसा स्विट्ज़रलैंड के किसी बैंक में नहीं छुपाया हुआ, इंग्लैंड जाके वो चोरों की तरह नहीं छुप के बैठा हुआ। बिलावल भुट्टो बार बार तसलसल से बात करें जनवरी में हुकूमत के जाने की, वोटर को बता रहे हैं कि जनवरी में हुकूमत जा रही है, समझते हैं वोटर उस तरफ जाएगा? ज़ाहिर है उसको पता है कि जो वफाक है वहाँ पर भी कुछ मसाइल चल रहे हैं। वोटर बड़ा होशियार है और अब बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। जीबी में तो बिल्कुल इतना हाई लेवल ऑफ लिटरेसी है यहाँ पे, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको बिलावल अब बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ना मरीम नवाज साहबा बेवकूफ़ बना सकती हैं। अपने वालदैन के अकाउंट्स का हिसाब दे दें और वोट ले लें। मैं तो छोटी सी बात करती हूँ। और एक ज़रूरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि पीटीआई को इस वक्त फ़ख्र है कि हम 15 सिर्फ ख़वातीन के इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर चुके हैं। हम पहली जमात हैं जिसने ख़वातीन के इलेक्शन ऑफिस बनाए हैं। हमने एक खातून को गांची जैसी जगह पे डायरेक्ट इलेक्शन लड़ने का टिकट दिया हुआ है और वो हमारी सदर है शोबा ख़वातीन की। हमारी शोबा ख़वातीन की जनरल सेक्रेटरी ये खड़ी, इनको हमने नंबर 1 रिज़र्व सीट्स पे रखा है। सो हम ख़वातीन के ताकत में बिलीव करते हैं, हम समझते हैं कि बराबरी के हम हकूक़ दे रहे हैं उनको। अभी हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं जहाँ पे हमारी ख़वातीन ट्रेनर्स ने मर्दों और औरतों के पोलिंग एजेंट्स ट्रेन किए हैं। तो मुझे बहुत फ़ख्र है कि हम एक बहुत बड़ी तब्दीली ला रहे हैं और अगर हमारी ख़वातीन एम्पावर्ड होंगी जीबी में तो मर्द भी साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह और तब्दीली लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर नीलोफर बख्तियार साहिबा। शाह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने जान ली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे एतमाद है कि जिस तरह से वो पहले तब्दीली लाए हैं अब गिलगित बल्तिस्तान में भी तब्दीली आएगी और ख़वातीन वो कहते हैं कि आगे आगे मर्दों के बराबर इस मुआशरे में उनके लिए और उन्हीं के लिए यहाँ पर बहुत से इंतजामात भी किए जा रहे हैं।